Sir, good evening. Good evening. Can you start over here? Can you hear me? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Arpit, to introduce yourself. Sir, I am Dr. Arpit Shukla. I am 42 years old. I was born and brought up in Jabalpur. I did my schooling from St. Aloysius, followed by my graduation in mechanical engineering, then followed by my MTech in industrial engineering and management. After that, I have done my PhD in mechanical engineering from Modi University, Lakshmangarh, Rajasthan. Currently, I am working as Director Academics and Admission in Takshila Institute of Engineering and Technology from last 17 years. So you belong to Jabalpur district. So Yes, sir. can you explain some historic fact about Jabalpur? Sir, Jabalpur is basically situated in the center of Madhya Pradesh, and it was mainly known because of Rani Durgavati and her fort and Raja Shankar Shah. There is a fort near Sangramgarh. Right now, it is in district Damoh, but is very near to Jabalpur. And she was known, famous for fight between the Mughals. रानी दुर्गावती सर ये उनकी एक मतलब ऐतिहासिक वो है दूसरा भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अधिवेशन भी 1913 में यहाँ पे हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन उसको बोलते हैं तो आजादी के समय कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी जबलपुर से जुड़े हुए रहे उस त्रिपुरी सम्मेलन में कौन अध्यक्ष था वहाँ का? त्रिपुरी सर सम्मेलन। उस समय सुभाष चंद्र बोस थे उस समय अध्यक्ष ओके। श्री आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी So can you explain real-time incident from your life that you are going to be part of this ITI Institute or any administrator and the principal of this college? So how would you manage the situation when the teacher are not the punctuals to study for teaching and students are not coming in at a regularly? So how would you manage or tackle these situations? See, sir, right now I am working with the same situation with engineering student. अभी कॉलेज में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की जो उपस्थिति है वो पर्याप्त नहीं होती है जो उनको एग्जाम के लिए एलिजिबल बनाए तो उस स्थिति में हम लोग कभी कभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो फाइन लगाने की कोशिश करते हैं जो कि सरकारी में संभव नहीं है मगर उसके बदले में हम मोटिवेशनल क्लासेस करना उनको बेसिक्स पढ़ाना प्लस साथ में कुछ फंक्शंस सेरेमनी कराना कुछ बच्चों के बीच में कंपटीशन कराना इंडस्ट्रियल टूर कराना विजिट कराना डे टू डे इंटरेक्शन इंडस्ट्रीज के साथ कराते हैं तो उसमें बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट बनता है फिर बच्चों की अटेंडेंस भी बढ़ती चली जाती है हाल हाल में बीच में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करा देते हैं होली का सेलिब्रेशन करा देते हैं दिवाली का सेलिब्रेशन कराते हैं और उसके लिए क्राइटेरिया अटेंडेंस का रखते हैं तो फिर बच्चों की अटेंडेंस बढ़ जाती है सर सेम हम स्टाफ के साथ में भी यही सब करते हैं उनके रिजल्ट एनालिसिस करते हैं रिजल्ट एनालिसिस में जिस स्टाफ का रिजल्ट अच्छा रहता है उसको इंक्रीमेंट में हम मोटिवेशन देते हैं मगर गवर्नमेंट कॉलेज में इंक्रीमेंट की जगह कुछ दूसरे पर्क्स उनको दिए जा सकते हैं Because in government college, you have very limitations to implement. Because we have to, ITI college are running through very severe situation. That is that identity placement, especially the placement. Hello. So yes sir yes sir if you talk about the various the engineering college, top reputational college, they are not going to be where the students from these colleges are going to be placed. And if you compare these the students from ITI, I think they are too lagging behind for them as compared to us. no no sir So I want your suggestion to improve or to face the challenges that they will deal that the student from this ITI college deal such kind of challenges and to be placed at the better reputed company. It means that it comes to the current situation, they are too lagging behind and coming and after completing their courses, they are not getting the job. That's a very serious situation. So I would like to suggest your suggestion that you will improve as a administration or as a principal of this college. So can you define these steps 3 and 4 and 5 terms? Sir, first of all, we will try to find out what is right now going on in industry, what is demand in industry. Then we will try to figure out the training which will be industry-based training, hands-on training, which we say.
then we can take or ask industry people to visit our college and have interaction with the student, telling them what is right now going on in the industry, and we can design some courses which will lead to hands-on training for them. Also, we can try to manage some industrial visits in which the students can directly go to the industry and see what is happening over there. All these things can lead to the greater placement or better placement of the students, sir. All your suggestion is good. The one suggestion that you have explained. So do you think that the principal of ITI college have any particular power to implement these courses or to change the curriculum Sir, or sir, curriculum cannot be changed because curriculum is already there, which is fixed by NSQF. National Standard for Quality Fixation for these courses. Magar, we can put some hands-on training for special training like right now computers interaction, artificial intelligence, machine learning. All these things can be trained to students apart from their regular studies, and students will also be interested to study all these things. okay. Can you define the hierarchy that is implemented in ITI college from lower to So the main post is the principal, then there is the senior instructor, then comes the clerk and the office division, and then comes teachers, technical assistant, and then the security persons. So I'm talking about in the hierarchy from top to bottom or bottom to top. So You from top to bottom, I told from principal to security official, sir. okay. So now my questions regarding the computer science, especially that is fundamental computer, that is part of your syllabus. So Yes, sir. yes, what is a difference between volatile memory and non-volatile memory? Sorry, sir. I know only RAM and ROM, sir. Random access memory and read-only memory. So what is the Maybe a little smaller 4 GB, 8 GB RAMs are there in computers, laptops, mobile. RAM is my second question is that what is operating system? Operating system. Yeah. Sir, operating system is a system which operates the computer, that is mainly CPU, central processing unit, and it have various software like utility software, operating software, and application softwares are there. Utility softwares maybe operating softwares is like MS Window, and operating softwares are like for printers and other hardware. I want to Utility software may be like MS Excel, Word. These can be the. tell me one thing, which is the fastest memory? Uh, Primary memory, read, RAM, ROM, secondary memory, hard disk, or cache memory, or register. These are the Sir, four. I think, sir, according to my knowledge, cache memory is the fastest memory, sir. It's a temporary memory and it is the fastest memory. No, I think you haven't gone through the computer question, even you have not taken it seriously. Okay. Then, okay. Kalpit, am I audible? Yes, sir. Okay, what's the date of today? Wetlands Day. Bird wetland day, right, sir? लगता है कि आप थोड़ा मैकेनिकल में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे as compared to other Yes, subjects. yes, sir, maybe. So I'm going to ask you a basic question. What is the difference between Rankine cycle and your Breton cycle? What are the basic difference between them? Sir, in Rankine cycle, the heat and the pressure remains constant, and in that Breville cycle, it differs. Okay, अच्छा ठीक है. अच्छा वैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो दुनिया का फर्स्ट मैकेनिकल इंजीनियर किसको माना जाता है? फर्स्ट मैकेनिकल इंजीनियर. Sir, according to Indian, I can say it may be Vishkarma ji, but in modern technology, there might be somebody. I don't know the exact name. अभी आपने विश्वकर्मा जी का नाम लिया है तो एक स्कीम चलती है पीएम विश्वकर्मा योजना. तो जी सर. क्या है ये? पीएम विश्वकर्मा योजना में जो इंडिया के नॉर्मल ट्रेड्स हैं, 12 ट्रेड्स हैं, जैसे कॉबलर हो गया या पॉटरी हो गया या 12 है कि 14 है?
सर 12 या 14 या 18 होंगे, मतलब कुछ जो ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं, जैसे कुम्हार हो गया, बढ़ई का काम हो गया, कॉबलर का काम हो गया, या हैंडीक्राफ्ट का काम हो गया। ऐसे ट्रेड्स में उनको और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेंड किया जाता है, स्किलफुल किया जाता है, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को अच्छे से प्लान कर सके, वर्कआउट कर सके सर। अच्छा, आपने बॉयलर्स के साथ काफी डील किया होगा, तो बॉयलर्स की नहीं सर, मैं बेसिकली कॉलेज में था तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे था। मैंने सिर्फ बॉयलर्स जब कॉलेज के समय पढ़ा था तभी पढ़ा था, कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। सतीश जी, जी सर। जबलपुर से हैं आप? जी सर। जबलपुर में आईटीआई से संबंधित कौन सा आपका वहाँ पर डिपार्टमेंट है या ऑफिस है उनका, किस नाम से जाना जाता है? सर जबलपुर गवर्नमेंट आईटीआई है सर, करमेता रोड में, ठीक है। दमोह नाका के पास में एक गवर्नमेंट आईटीआई वहां पे है, और एक बरगी के पास में है सर। और एक ऑफिस और है सर, जो स्टेट लेवल का है, जो सर स्टेट में एक चल रही है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, एक चल रही है कौशल संवर्धन योजना, एक चल रही है कौशल्या योजना। ये स्किल से रिलेटेड चल रही है। बाकी सर स्कूल से रिलेटेड लाडली लक्ष्मी योजना है, एक बच्चों की कोचिंग के लिए, एसटीएससी बच्चों के लिए आकांक्षा योजना है, और उज्ज्वला योजना है। इस टाइप की कई योजनाएं और हैं। पीएम के भी, मगर जो, पीएम हाँ, के, पीएमकेवीवाई ये सेंट्रल की योजना है, डीडीयूजीकेवाई ये सेंट्रल की योजना है, पीएम विश्वकर्मा ये भी सेंट्रल की योजना है सर। ओके, पीएम के भी 4.0 और जी इंडस्ट्रियल सर। 4.0 से आप क्या समझते हैं? सर जब लॉन्च हुई थी 2014 में पीएमकेवीवाई, तो 1.0 था उस समय। उसका लक्ष्य काफी छोटा था। फिर ग्रेजुअली 2.0, 3.0, और अभी जो लेटेस्ट आई है वो 4.0 आई है। और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, सोलार पैनल से रिलेटेड ये वाले ट्रेड्स को इंक्लूड किया गया है, ताकि इसमें ज्यादा ट्रेनिंग कराई जा सके, जो भी ज्यादा हैपनिंग है सर पीएमकेवीवाई में, ना अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास। जी कौन सर। कौन से इम्प्लीमेंट किए गए हैं इसमें पीएम के? कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए होंगे सर, मतलब जो, सर इम्प्लीमेंट इसमें जो मतलब बेसिक सहायता राशि थी वो बढ़ा दी गई है सर पहले से। जैसे? सर एग्जैक्टली याद नहीं है सर, फिगर आउट नहीं है होता है। ओके, अभी आईटीआई डिपार्टमेंट में आपके जॉब रोल क्या क्या रहेंगे? 3 शब्दों में आप यदि प्रिंसिपल बन जाते हैं, 3 शब्दों में समझाइए कि आपका क्या क्या कार्य रहेगा। ओनली 3 शब्द। सर एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिन, प्लेसमेंट सर। एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लेसमेंट। फाइनेंशियल का क्या रहेगा? आपने तो बोले ही। सर एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा सर, फाइनेंशियल भी। कैसे इसका उपयोग करेंगे आप अगर आईटीआई बनाएंगे? सर जो नए से नए इंडस्ट्रीज में अभी जो ट्रेंड्स चल रहे होंगे उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करूंगा। स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने की कोशिश करूंगा, इंडस्ट्रियल इंटरेक्शंस बढ़ाने की कोशिश करूंगा, इंडस्ट्रियल विजिट्स बढ़ाने की कोशिश करूंगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराने की कोशिश करूंगा। अभी कोई और अगर, अभी जी लेटेस्ट सर। लेटेस्ट कोई ऐसी स्कीम चालू की है गवर्नमेंट ने जिसमें इंडस्ट्री के साथ कोई टाई अप? स्टूडेंट्स के लिए सर बताना चाहूंगा कि एक स्कीम और चालू की गई थी, गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किए हैं इंडस्ट्री के साथ। डीएसपी डुअल ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसमें बच्चा क्या करेगा, 6 महीने आपको थ्योरी लेगा और 6 महीने प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के अंदर वो सीधा वो टाई अप किया है ना। तो उससे क्या है, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके स्टूडेंट को रोजगार की जो संभावना है उनको बढ़ाई जा रही है। जी सर। डीएसपी मोड पे मतलब सारा काम चालू होने वाला है और हो भी गया। ठीक है, सर डीएसटी का फुल फॉर्म सर। डुअल ट्रेनिंग सिस्टम। अब बच्चा डुअल ट्रेनिंग में रहेगा, वो 6 महीने आप ट्रेनिंग थ्योरी लेगा और 6 महीने प्रैक्टिकल लेगा इंडस्ट्री के अंदर। इसी तरीके से जी वो सर। एमओयू साइन होंगे इंडस्ट्री के साथ। बहुत सारी आईडिया ने करा भी दिया है। अच्छा, ग्लोबल स्किल पार्क के बारे में कुछ आइडिया है आपको? सर ग्लोबल स्किल पार्क सिंगापुर के साथ कोलैबोरेशन में भोपाल में बनाया गया है सर। उसमें काफी इंडस्ट्रीज का इंटरेक्शन किया गया है, ताकि जैसे हब एंड स्पोक स्कीम होती है उस तरह से सारे स्किल सेंटर्स को नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी मिल सके सर। ओके, क्या आवश्यकता पड़ी इसको बनाने के लिए?
सर अभी जो रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं टेक्नोलॉजीज के, उसका अपडेट डायरेक्ट यहाँ पे जो आईआईटीआईज खुली हुई हैं मध्य प्रदेश की, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो उन तक वो चीज पहुंच सके इसलिए इसको खोला है सर। संचालक कौन है, कुछ आइडिया है? नहीं सर। आईटीआई में सुधार के सर लिए, आईटीआई में सुधार के लिए ऐसी कौन सी स्कीम है जिससे आईटीआई सुधारा जा सकता है? सर आईटीआई में सुधार के लिए जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी कमियां चल रही हैं सर। मतलब एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। आज भी वहाँ पे जो मैंने मॉडल्स देखे हैं जो यूज होते हैं, चाहे वो मोटर्स के टर्म्स में हो चाहे वो इंजन के टर्म्स में हो, तो पुराने टू स्ट्रोक इंजन रखे हुए हैं, जबकि आजकल टू स्ट्रोक इंजन ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं सर। सिर्फ फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं। फिर फोर स्ट्रोक इंजन में भी बात करें तो कार्बोरेटर ऑब्सोल्यूट हो गया, एमपीएफआई आने लगा है। और आगे बढ़ेंगे अपन तो अब तो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आता जा रहा है। तो नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अब आईटीआईज में चीजें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उनको बहुत जरूरी हो गया है परिवर्तित करना, उनको चेंज करना सर। अच्छा अच्छा अच्छा। मिस्टर कौन है अपने यहाँ एमबी कौशल विकास में? नहीं सुन पाया सर। अपने यहाँ कौशल विकास में मिनिस्टर कौन है? सर आदरणीय श्री गौतम टेटवाल जी हैं सर मिनिस्टर। इससे पहले कौन थे? जानकारी नहीं सर। दूसरे तकनीकी शिक्षा के इंदर सिंह परमार जी हैं सर। थोड़ा सा पास में पढ़ रहे हैं। जी सर। अच्छा, पास्ट वाले भी पढ़ लो। करेक्ट पास, जैसे कि मैंने बोला था कि इसके संचालक कौन है जी। आईटीआई में अपने यहाँ, तो वो आपको भी एक्चुअली क्या है, जस्ट करंट में अभी हर्षिका सिंह, हर्षिका सिंह जी सर। हाँ, लेकिन अभी परिवर्तन हो गया है क्योंकि अभी न्यू जो ट्रांसफर पॉलिसी में उनका ट्रांसफर हो गया है, तो आपको न्यू भी पता होना चाहिए, है ना। अतिरिक्त प्रभार अभी उसका गिरीश शर्मा जी के पास है, तो ऐसे करके आपको ये सब। गिरीश शर्मा जी सर। हाँ जी हाँ। और सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका इसमें जो स्ट्रक्चर बेसिक क्या होता है, आपका प्रमोशन जो आप प्रिंसिपल ग्रेड 2 से ग्रेड 1 होते हैं, और ग्रेड 1 के बाद जॉइंट डायरेक्टर होते हैं सर। यहाँ तक मैंने देखा था। उसके बाद मतलब एक प्रमोशन ऊपर जॉइंट डायरेक्टर तक का देखा था, उसके ऊपर का नहीं है सर आइडिया में। उसके बाद एडिशनल होंगे, फिर ड्यूटी होंगे, देन उसको डायरेक्टर होंगे। तो आप पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप देख लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, पूरा स्ट्रक्चर स्टडी आप करिएगा। सर बिल्कुल उसका ब्लो एंड आप सारा देखेंगे आप सर आप। जी सर। अर्पित जी, जी सर। एमपीएफआई क्या होता है? सर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन होता है सर। क्या यूज होता है इसका ऑटोमोबाइल में? सर कार्बोरेटर को रिप्लेस करता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर एक बार में बना के और इंजेक्ट करने में काम आता है। बेसिकली पेट्रोल इंजन में यूज होता है सर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर सर किस ब्रांच में कंपाइलर, मतलब किस सब्जेक्ट से रिलेटेड? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सब रिलेटेड होता है। Compiler, interpreter, assembler, compiler which convert source code into object code. अच्छा, मतलब इसका यूज पढ़ा आपने ऑटोमोबाइल में? मतलब जैसे रॉड्स लेके उसको फील्ड पे लगाया जाता है, फिर उसको एंगल से मेजरमेंट किया जाता है सर। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की डेफिनेशन बताइए। सॉरी सर। सर ठीक है। Can you elaborate the computer related idea courses that ends in 1 year? सर कोपा है एक कंप्यूटर रिलेटेड। For example, उसके बाद में अभी जो चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी है। थिंग्स ऑन इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कोपा सर। ये 4-5 what पता is है मेरे को कंप्यूटर से। full form of COPA? सर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग एनालिस्ट। Programming assistant. असिस्टेंट। सॉरी सर। सॉरी सर। Oh, what is vocational training? Sir, vocational training is training which is directly related to livelihood. After this training, you can directly get job like electrician, fitter, machinist, welder. This is part of vocational training, sir. This is the इसको example. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है। In terms of what? That what is vocational? This vocational training. We have elaborated the example for fitter of these trades in terms of lines, the definition. How will you determine this is the vocational training? What is skill? What basically the term is compulsory of this training. Sir, vocational is education which is apart from basic education. The education which will lead to your livelihood. मतलब सर सीधे स्वराज मतलब रोजगार देने के लिए जो पढ़ाई कराई जाती है वो वोकेशनल पढ़ाई होती है। पारंपरिक पढ़ाई नहीं होती सर। 10th 12th ग्रेजुएशन ये वाली नहीं होती। So apart from the traditional training, everything is count as it vocational training if we train any particular person. Yes sir, we can say that sir.
If we train a particular person for loading or for making brake, ये called vocational training. So that will be a skill training that can be also done in a better way Then if what we is will that? train a person. Then what is the difference between skill training and vocational training? सर स्किल ट्रेनिंग जैसे जो पीएम विश्वकर्मा योजना में जो भी सिखाया जा रहा है वो स्किल्ड ट्रेनिंग कहलाएगी, और जो ये हम पढ़ा रहे हैं मशीनिस्ट वेल्डर, ये वोकेशनल ट्रेनिंग कहलाएगी सर। Yeah, you know, स्किल ट्रेनिंग में मतलब कुम्हारगिरी हो गया या कॉपरी का जॉब हो गया या हैंडीक्राफ्ट हो गया, ये स्किल्ड हो जाएगा सर, अप टू माय नॉलेज। yes. So can you define it in words? That this is the example you have cited. You had इसमें आपको अर्पित जी आइडिया है कि आपको करियर के अंदर इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कौन सी होती है? इंजीनियरिंग ट्रेड कौन सी होती है? इंजीनियरिंग कौन से सर? इंजीनियरिंग ट्रेड। हाँ सर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, डाई एंड कास्ट मेकर, और नॉन इंजीनियरिंग जी सर। नॉन इंजीनियरिंग सर नॉन इंजीनियरिंग में जैसे ब्यूटिशियन, हेल्थ केयर, और क्या बोलते हैं, स्टोर मैनेजर, कोपा हो गया नॉन इंजीनियरिंग में, और कौन सा होता है सर? एनएसक्यूएफ, एनएसक्यूएल लेवल सर। एनएसक्यूएफ नहीं सर, नेशनल, उसका फुल फॉर्म पता है सर, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, मगर ये नहीं पता सर मुझे। अच्छा अर्पित जी, आपकी हॉबी है ट्रैवलिंग, आपने लिखा हुआ है ट्रैवलिंग, तो जी सर। अभी सीएम जी ने अभी एक कैंपेन चालू किया है रिसेंटली, 1 मंथ हुआ, क्या कैंपेन चला रहे हैं वो? सर वो कृष्ण पाथे करके एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें कृष्ण जी ने जो जो रूट पे ट्रैवल किया था उस जगह को डेवलप करने की बात चल रही है सर। और इसके तो अलावा एक और चला रहे हैं, सेल्फी विद हेरिटेज करके चला रहे हैं। अच्छा सर, थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा अभी एक आइलैंड हमने डेवलप किया है, क्या नाम है उसका आइलैंड का? सर ये शहडोल और सतना के पास में डेवलप हुआ है सर, एमपीटी का रिसोर्ट है। उसका टैरिफ पता है 7,000 रुपीज पर में, मगर नाम भूल गया हूँ सर, बहुत अच्छा नाम है, सैलानी आइलैंड है सर शायद। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर। Yes, some suggestion from my side, Mr. Arpit, that your body language looks perfect, fine. Your attire seems to good. I think try to wear the shirt instead of this t-shirt. And the way you present the answer is perfect, smiling is always on your face. And but for me, that you have very poor knowledge regarding the fundamental of computers and electronics. That is a part of your syllabus. And at least try to brush up the knowledge or to read what is the gate flip flop. These are prescribed in your syllabus. At least you answer. You are not exploring that way, but at least you can define these terms. One thing, and the second thing is that read some historical and tourist background of your Jabalpur where you belong to, because they can ask historical and your tourist background, that what is all about. And Thank you sir. Sir, how much will you score me out of 50 sir? Yeah, 36 to 40, 36, near 35 to 40. Yeah, definitely. You need some 35 sir. Yeah, you need some improvement. You are not, because I think you are in very good shape. Thank you so much sir. One more, some more suggestion from other panelists also. Give the Sir, just a small request sir. मतलब please give me my feedback. I'll be good for me sir. Yes, yeah, that is the ability and will अर्पित जी, वैसे सर ने आपको प्रॉपर्ली सारे सजेशन दे दिए हैं। मैं भी थोड़ा सा आपको यही मतलब बोलना चाहूंगा कि आपने अपने आप को सिर्फ तो पहले रिटर्न टेस्ट में कर ही दिया है। अब इंटरव्यूज के लिए जाएंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आईटीआई के स्ट्रक्चर्स है ना, आपकी जिम्मेदारियां, आपकी रिस्पांसिबिलिटी, क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना, वो सारा जी सर। उससे आप प्रिपेयर होके जाए। ठीक है, टेक्निकल में थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है वो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके सिलेबस में था वो, तो आप ऐसा नहीं हो सकते कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आइडिया नहीं, तो क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं, कंप्यूटर्स में आ सकते हैं, तो आप इसको प्रिपेयर होके जाए। बाकी ऑल द बेस्ट।